जो कैंसर है या कोई भी डिजीज है, आर दे ऑल जेनेटिक? Genetically, it's hardly 1%. Otherwise, cancer is totally due to the environmental effect of the human body. पहला जो काम है ऑक्सीडेशन का वो है हमें बूढ़ा करना। दूसरा काम क्या हुआ? हमें बीमार करना। जितनी भी बीमारियां हैं हमारे अंदर, they are all caused by oxidative stress. You told me something about Kangen water. We have testimonials of people where people have been able to cure almost every disease by simply drinking this water. And you know why? Because that Kangen water contains up to minus 800 millivolts of charge in every sip you drink. There are so many studies which have proven, मतलब इतना अब तक प्रूव कर दिया है कि जिस साइड पे आप ज्यादा फोन लगाते हैं उस साइड पे आपके ब्रेन में ट्यूमर्स डेवलप होते हैं। Hello everyone and welcome back to my show Karya Talks with Barkha. Let me tell you one of my secrets today, which is I want to be really wealthy. और ये तो हमने सुना ही है that health is the real wealth. And we also see that today in our families, friends and in our environment, many people are suffering from one or more diseases. और एक डिजीज कैसे होता है? जैसा कि हमने अपने इंडियन आयुर्वेदा में सुना है कि जब प्राण वायु शरीर में कहीं रुक जाती है तो एक डिजीज पैदा होता है। उसे ट्रीट करने के लिए आज के समय में हमारे पास कई तरीके हैं, लाइक एलोपैथी, होम्योपैथी, आयुर्वेदा एंड ऑल्सो अ न्यू प्रैक्टिस विच आई हैव रिसेंटली हर्ड अबाउट, दैट इज क्वांटम मेडिसिन। क्या आज के टाइम में ऑल्टरनेट मेडिसिन और क्वांटम मेडिसिन मॉडर्न साइंस के साथ काम कर सकते हैं? ऐसे ही कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक्स को डिस्कस करने के लिए आज हमारे साथ हैं एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट, डॉक्टर विवेक भटनागर, हु इज एन ऑन्कोलॉजिस्ट एंड अ hematologist, and he is the only doctor in India who is practicing quantum medicine as of today, and he has healed the unhealed. So let's hear from him his story. Let's welcome Dr. Vivek Bhatnagar. So hi Ronnie, how are you today? I'm good. How are you, Bakra? I'm good. First of all, thank you so much for coming on my show Karya Talks with Barkha. It's a great honor. It's my pleasure too. So let's start with can you give a brief introduction about yourself? Okay, sure. I am Dr. Vivek Bhatnagar, and I'm an oncologist and a hematologist. Mhm. Uh, I specialize in quantum medicine, and this is something which is very new name for most of the people because this technology, not many people work with this, and it is, as you know, quantum is the smallest unit of measurable energy. That's what quantum is all about. So it is all about healing with the energy, which is the source of all the matter. Wow, great. On colleges तो मैंने सुना है, but how did it come to you कि आपको ये quantum medicine के बारे में पढ़ना है, इसे practice करना है, and what is it exactly? Because I have no idea. Okay, there are many modalities in quantum medicine which I use. So there are certain electronic devices which are based on quantum mechanics, and one of them is we call it NLS. That's non-linear scanning, in which what I do is I take the DNA sample of my patient, maybe a drop of a blood or just small nail clipping, and then I scan that DNA sample. Through that scan, I come to know which part of the DNA has got mutated. Yeah, and once I know that, then I go to that part from the same equipment, and we reverse that mutation which is causing the disease. Okay. And if you talk about it, it is nearly impossible for the current medical scenario. It's not achievable, and that's what we do. या और मैंने भी इसके बारे में ज़्यादा नहीं सुना है या पढ़ा है, बट स्टार्टिंग फ्रॉम माय वेरी बेसिक क्वेश्चन कि जो कैंसर है या कोई भी डिजीज़ है, आर दे ऑल जेनेटिक या फिर दे आर इन्वायरमेंटली इंड्यूस्ड फ्रॉम एक्सटर्नल फैक्टर्स एंड? Okay, इसके ऊपर बहुत सारी controversies हैं, but if you talk about particularly cancer,
So genetically, you're talking about it's hardly 1%. If a child is born with a you know with a malefic gene, then that's the only possibility. Otherwise, cancer is totally due to the environmental effect over the human body. Okay. Yeah. But you see, you need to understand the basic thing before you talk about disease, before you talk about solutions. You need to understand what is disease. Mm-hmm. Yeah. So the definition of disease is simple malfunction of cell is called disease. Let me explain you. So our body is made out of trillions of cells. Yeah. And Mm-hmm. every cell is a separate conscious entity. So they come together Mm-hmm. and they form our body. Yeah. So every cell has certain responsibility, certain function, and it is till the time every cell is doing its function properly, we are supposed to be in a good health. So the day one cell start to malfunction, that particular cell will start the disease. Yeah. Okay. So that's why I say disease is nothing but a malfunction of cell. इसको अगर example से समझें तो the most common ailment आजकल diabetes है. Yeah. Mm-hmm. So diabetes is because there is a responsible organ in our body called pancreas, which is of course made out of cells. Mm-hmm. When the cells of pancreas are not working the way they should work, उनको इंसुलिन बनाना चाहिए, वो नहीं बना रहे हैं. It's a simple malfunction. Yeah. So this is how you define disease. Simple malfunction. और अगर आप डिजीज को इस डेफिनेशन से समझ पा रहे हैं तो द क्योर बिकम मच मोर इजियर टू अंडरस्टैंड. उसके लिए जब से आप पैदा हुए हैं, या सो आपका आपका जो शरीर है, आपका बॉडी है, इट इज डूइंग वन मेजर फंक्शन. दैट फंक्शन इज इट मेक्स न्यू सेल्स, millions of cells per second, and it replaces the cell which is malfunctioning or which is causing disease. Until and unless that disease causing cell is replaced by your own body, disease cannot be cured. Okay. So if somebody says कि आप ये दवा ले लीजिए, you'll get cured, और ये therapy आपको cure कर देगी, it's a lie. You must have heard a proverb in English, a very old proverb. The cure lies within. Yeah, a lot of people talk about it, हमने सुना है, but we didn't understand. The problem is that people are trying to find the cure outside their body. Right. इसी में मैं और पूछना चाहूँगी कि तो क्या हम जितने भी हम अपने फैमिली में लोगों को जानते हैं, कोई जैसा आपने कहा डायबिटीज़ की दवाई खा रहे हैं, कोई so many girls are suffering from PCOS, PCOD, thyroid, and we are taking so many medicines. Yeah. In a way, not knowing, maybe because of lack of awareness, कि ये खा के हम ठीक हो जाएंगे. But as you are saying कि बिना सेल ग्रोथ के या फिर जब तक वो सेल ठीक नहीं हो जाता हम हील नहीं हो सकते. So is that a temporary, like putting a band-aid on the wound? I just showed you how the cure can be achieved. It doesn't matter which disease. Disease is a malfunction of cell. कोई cell, some group of cell in your body is malfunctioning. That's the reason why the person is suffering, why the person has a disease. Right. आपकी body का responsibility, it is designed to cure itself. And the design is that the body will make new cells and replace the disease causing cells. And that's the only condition how the cure can be achieved. There is no other way. No matter which doctor you go, no matter which country you go, that's the only possible way of curing any disease. लेकिन don't you think इस statement से कितना आसान हो जाता है किसी disease को cure करना? Do you feel कि
इस स्टेटमेंट के बाद कोई डिजीज आपको बड़ी दिखती है? ओह, इट्स सो फियरसम. Yeah, well, I think there are two points which comes to my mind. अगर सिर्फ यही definition है, and I agree with your point, then of course it becomes very easy. But again, at the same time, because from so many years we all have seen people taking so many medicines, then you know your faith shatters in like normal medicine which is going on. Okay, let me put it another way. आपने बहुत सारे पेशेंट्स देखे होंगे जो डायबिटीज से सफर कर रहे Hmm. हैं, और वो लोग मेडिसिन भी ले रहे हैं. Yeah. या पहले मेडिसिन शुरू होती है टैबलेट से, फिर वो इंसुलिन के इंजेक्शन पे जाती है. Hmm. आपने इतने सारे डायबिटिक पेशेंट्स में से एक भी पेशेंट ऐसा देखा जिसने अपनी दवा खा के डायबिटीज को क्योर कर लिया हो? No, I have not. व्हाट्स द रीजन? Because it's not for the cure, it's maybe just to temporarily help the The patient. reason is that their body is not making enough cell in the Hmm. pancreas so that the malfunctioning cell could be replaced. You're just managing the symptoms. शुगर ज़्यादा है, आप दवा लीजिए, शुगर कम हो जाएगी, Mhm. डायबिटीज साथ बैठी रहेगी, लाइफ Hmm. लॉन्ग. Hmm. Yeah. So if you want to cure any disease, you need to make sure that your body is making enough healthy new cells. Okay. So I know that you use quantum medicine in your treatment for your patients. तो अब इस cellular regeneration में quantum medicine क्या है? Like what is it exactly? Okay, हमारी बॉडी एनर्जी से चलती है. या एवरी सेल इज कॉन्शियस, एज आई सेड, एंड एवरी सेल हैज अ फंक्शन टू डू. या हार्ट का सेल का फंक्शन अलग है, Hmm. आँख के सेल का फंक्शन अलग है, Hmm. कान के सेल का फंक्शन अलग है. या Hmm. सो these cells need energy to work. Right. Okay, Mhm. now ये जो एनर्जी है जब कंबाइंड होती है ग्रुप ऑफ सेल से, and the organ is formed. Hmm. So organ is also working with the same energy, which is now cumulative of the number of amount of cells present in the organ. So जिस energy की हम बात कर रहे हैं, if you have uh, some kind of control to help the cell make more energy, और अगर आप ये नहीं कर सकते हैं तो इफ़ यू हैव सम वे टू सप्लीमेंट द रॉ मटेरियल what the cell need to make this new energy, Mhm. the problem is solved. और quantum healing में we deal only in energy. Yeah, so what we do, we manipulate, I'll not say manipulate, we balance the energy and we try to activate the body's own system to generate whatever it wants to Okay. become healthy. तो इसके लिए आप कोई machines use करते हैं? Like how do you do it in reality? Yeah, there are many modalities, बहुत सारे electronic systems हैं. Some are developed in Russia, some are developed in different parts of the world, and they are all working on a same concept, which people understand by the name of energy healing. Yeah. Energy healing is a very abstract term in itself, because it becomes very general. But what we do, we utilize today's modern machinery Okay. to affect the energy of the body. Okay. जैसा कि टेस्ला भी कह गए, निकोला टेस्ला, that Mhm. if you want to understand the world, you need to understand the energy. Yeah. क्योंकि मैं भी जैसा हम देखते हैं आज के टाइम में तो इतना ज़्यादा पॉपुलर हो गया है, लाइक प्राणिक हीलिंग एंड एनर्जी हीलिंग थ्रू चक्रास एंड द कोर्सेज गोइंग ऑन इट. एंड कल तो मैंने अमेजोन पे शायद एक मशीन भी देखी थी. इट वाज अ क्वांटम मैग्नेटिक एनर्जी एनालाइजर.
Mhm. which they are selling for 10,000 rupees. Mhm. So, what are your thoughts about that also? They are also healing in the same way, या फिर क्या है वो? मेरा अपना मानना है कि अगर किसी भी चीज़ के आगे क्वांटम लगा दिया जाता है तो वो क्वांटम नहीं बन जाता है ना. Hmm. इट्स देयर इज अ वेरी डिफरेंट ऑल टुगेदर थॉट. बट यस, क्योंकि क्वांटम एक ऐसा शब्द बन गया है, पीपल आर बिकमिंग क्रेजी अबाउट इट, समथिंग न्यू, एंड एक हाइप बना हुआ है. Hmm. सो देयर आर many devices, but most of the devices are diagnostic. उससे आपको Hmm. सिर्फ पता लग सकता है कि बॉडी में कहाँ एनर्जी लेवल्स आर डाउन. लेकिन Okay. पता लगने से फ़ायदा क्या है? Hmm. आप उसको ठीक कैसे करेंगे? हाउ विल यू मैनेज, हाउ विल यू बैलेंस दैट? Right. Yeah. So diagnostic is a yes, the first step. You should know the problem, but you should have something by which you can actually cure. Hmm. और जैसा मैंने पहले आपको बताया, क्योर में आपका हाथ है ही नहीं, वो Hmm. आपकी बॉडी को करना है. Because it is designed in a such a way by the creator itself to Hmm. to cure itself. Okay. You should picturize yourself. Your body is making continuously, it's making new cells Hmm. to repair itself. उसका और कुछ काम हो ना हो, लेकिन ये काम कभी नहीं रुकता. Yeah. So in the continuous process, 24/7, your Hmm. body is making new cells, millions of cells in per second. Okay. Yeah. देन कैन यू टेल मी, अगर कोई पेशेंट जब आपके पास आता है अपनी कोई भी डिजीज लेकर, देन लाइक व्हाट्स योर अप्रोच टू इट, लाइक हाउ डू यू, एज यू सेड, हाउ डू यू एनालाइज फर्स्ट एंड गिव देम द क्योर, उसके लिए लाइक? आपको आपको कॉन्सेप्ट को समझना जरूरी है. या सो द कॉन्सेप्ट इज, I give a small presentation to educate the patient who comes to me, and it starts with जैसे मैंने अभी आपको बताया कि बॉडी इज मेड आउट ऑफ मिलियंस ऑफ सेल्स, ट्रिलियंस ऑफ सेल्स, सॉरी. और उन ट्रिलियंस ऑफ सेल्स में से आपको सिर्फ दो तरह के सेल्स को जानने की जरूरत है. वन इज हेल्दी सेल एंड द अदर वन इज सिक सेल. या ओके. सो अगर आपकी बॉडी में सारे सेल हेल्दी हो जाते हैं somehow, you have something to do, और उससे आप अपने सारे सेल्स को हेल्दी कर लेते हैं, तो इट इज इम्पॉसिबल, there is no chance for you to experience any disease. Disease occurs when this healthy cell becomes sick. राइट. Yeah. So अब इसको जानने के लिए एक पैरामीटर है जिसके बारे में कभी बात नहीं की जाती. नो डॉक्टर डिस्कसेस अबाउट इट. बट जब तक सेल के अंदर -25 मिलीवोल्ट का, दैट्स द मिनिमम अमाउंट, या -25 मिलीवोल्ट का चार्ज होता है, and this is measured, there's a way how to measure it. It's a difference between the membrane and the inner core of the cell. Yeah. So -25 मिलीवोल्ट का जब तक चार्ज सेल में है, तब तक वो माल फंक्शन नहीं कर सकता. इट इज कंसिडर्ड टू बी हेल्दी. ओके. राइट. और जैसे ही ये चार्ज कम होता है, मे बी -10 रह गया, या -5 रह गया, या 0 हो गया, वो सेल माल फंक्शन करेगा. It'll cause disease. It'll not be able to function the way it's supposed to. Yeah. तो दिस इज, अब आपको समझना पड़ेगा कि ये नेगेटिव चार्ज जो हम बोल रहे हैं है क्या. सो नेगेटिव चार्ज इज नथिंग. अगर आप किसी साइंटिस्ट से बात करेंगे तो वो आपको बोलेगा इलेक्ट्रॉन्स. या और आप डॉक्टर से पूछेंगे तो वो बोलेगा एंटीऑक्सीडेंट्स. हम यहाँ पे उसको अपनी सुविधा के लिए नेगेटिव चार्ज बोल रहे हैं. या सो all the three names are of the same thing. So negative charge, जैसे इलेक्ट्रिसिटी में पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों होता है. So we are talking about the one part which is negative, and it is the negative charge is always carried by electrons. So अब जब आपको ये पता लगा कि ये इम्पोर्टेंट है, नेगेटिव चार्ज ही आपको आपके सेल को हेल्दी रखने के लिए, सो
सबसे जो बड़ा क्वेश्चन अब बनता है वो ये बनता है कि अगर ये इतना इम्पोर्टेंट है तो कम होता ही क्यों है, या? तो एग्जैक्टली। उसका सिंपल सा एक रीजन है, देयर इज ओनली वन रीजन फॉर दैट, विच इज एसिडिटी। नाम सुना है आपने इसका? बिल्कुल। Yeah? Okay. या। So I'm talking about the acidity which is inside the cell. मैं उस ओके। एसिडिटी की बात नहीं कर रहा हूँ जो आपको फील होती है, बर्निंग हम्म। सेंसेशन। जब वो बर्निंग सेंसेशन आपके सेल में चली जाती है, the cell becomes acidic. ओके। That's the time when the charge goes down. और ये जो चार्ज गोइंग डाउन ऑफ द चार्ज का ये जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस को बोलते हैं ऑक्सीडेशन। ओके। या ऑक्सीडेशन को थोड़ा सा गहराई से समझते हैं कि ऑक्सीडेशन है क्या। जब एटम में से इलेक्ट्रॉन लूज होता है, या दैट इज द प्रोसेस विच इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। अब ऑक्सीडेशन का हमारी बॉडी में क्या रोल है? आप देखिए, ऑक्सीडेशन एक बहुत सिंपल सा टर्म है जिसको आप रोज ही सुनते हैं, या रस्टिंग ऑफ एन आयरन is what ऑक्सीडेशन। oxidation is all about. So जब लोहे में जंग लगता है तो एक्चुअल में क्या हो रहा है? आयरन के एटम में से जो इलेक्ट्रॉन है वो कम हो रहे हैं, और उस प्रोसेस के होने की वजह से आयरन बिकम लाइक अ पाउडर, इट्स लाइक अ डाई ऑफ, आयरन इज डाइंग, या, और वो खत्म हो जाता है। ये सेम प्रोसेस ऑक्सीडेशन का जब से आप पैदा हुए हैं और जब तक आप इस दुनिया में जिंदा रहेंगे, ये प्रोसेस तब तक चलता रहेगा 24/7, एंड वी कैन नॉट स्टॉप दिस प्रोसेस बिकॉज इट्स अ नेचुरल फिनोमिना। नेचर ने ऐसा ही डिजाइन बनाया है। ओके, अब जब हम ऑक्सीडेशन की रोल की बात कर रहे हैं, तो ऑक्सीडेशन का क्या रोल है हमारी बॉडी में? हम जो एजिंग प्रोसेस है हमारा, ओके। वो ऑक्सीडेशन इज डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल फॉर इट, या? जो एजिंग प्रोसेस है वो जो हमारा नॉर्मल एजिंग रेट है बॉडी का, उससे होता है। जब ये रेट बढ़ जाता है, द रेट ऑफ ऑक्सीडेशन इंक्रीजेस, और ये बढ़ेगा कहाँ? सेल में। ओके। या? तो दैट्स द टाइम व्हेन द डिजीज अकर। सो आई वांट टू आस्क यू अ क्वेश्चन कि नॉर्मली सो यू आर सेइंग कि हमारी बॉडी में ऑक्सीडेशन होता ही है और होगा ही, थ्रू विच वी आर एजिंग ऑफ कोर्स, बट व्हेन द एसिडिटी लेवल इन द सेल इज इंक्रीजिंग तो हमें वो डिजीज स्टार्ट तो हो रहा है, ऑक्सीडेशन का रेट उस नॉर्मल रेट से बढ़ जाएगा। या? और दैट्स द टाइम व्हेन द सेल बिकम्स सिक, ओके। या, एंड द सिकनेस इज कॉज्ड। सो पहला जो काम है ऑक्सीडेशन का वो है हमें बूढ़ा करना, या? दूसरा काम क्या हुआ? हमें बीमार करना। जितनी भी बीमारियां हैं हमारे अंदर, दे आर ऑल कॉज्ड बाय ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, या? जब ऑक्सीडेशन का रेट बढ़ जाता है, उसका रीजन बहुत सारे हो सकते हैं, बट the root lies in increased rate of oxidation inside the cell. Yeah? Okay, and the last function. So हमने सबने सुना है कि जो आया है वो जाएगा. Yeah? Correct. So death is what? Death is total oxidation of human body. Wow. So when we were talking about the three roles of oxidation in our life. One, हमें बूढ़ा करना. Two, हमें बीमार करना. 3, हमें मार देना. Okay. So मैंने आपको इतनी सारी इंफॉर्मेशन दी. So do you have some question related to that, or Oh yeah, I mean it's a lot of information which I am trying to process in my mind right now. But I want to start with जितना भी हमने अभी ये डिस्कस करा है कि एक सेल के मैल फंक्शन से डिजीज़ हो रहा है, उसका जब चार्ज कम हो जा रहा है तो डिजीज़ हो रहा है, तो इज़ इट योर रिसर्च और आर देयर एनी साइंटिफिक एविडेंस टू इट अवेलेबल, या ये बहुत पहले से ही डॉक्टर्स को और सबको पता है, बट इट्स जस्ट दैट एज एन ऑडियंस हम अवेयर नहीं है? सो कुड यू? Right, there's a doctor called Dr. Jerry Tennant.
उन्होंने इसके ऊपर बहुत अच्छा काम किया है. His Okay. whole life he has dedicated, and there's a book written by him called Healing is Voltage. Okay. So जितनी भी मैंने फिगर्स दिए हैं वो Mm-hmm. सारे आपको उस बुक में, उस रिसर्च में मिलेंगे. और ये नेगेटिव चार्ज की क्या इम्पोर्टेंस है, ये डॉक्टर जेरी टेनेंट से अच्छा किसी ने भी एक्सप्लेन नहीं किया. या और जहाँ तक नेगेटिव चार्ज की इम्पोर्टेंस की बात है, वहाँ मैं आपको एक और इन्फॉर्मेशन देता हूँ विच विल बी वेरी सरप्राइजिंग एंड शॉकिंग टू यू. these days we see a lot of cancer all around. या सो बहुत लोगों को कैंसर है, और जहाँ देखो आप कैंसर हॉस्पिटल खुल रहे हैं. तो अगर इतने कैंसर हॉस्पिटल खुल रहे हैं तो डेफिनेटली प्रोपोर्शनेट पेशेंट्स भी होंगे. या तो कैंसर की एक ऐसी इंफॉर्मेशन मैं आज रिलीज करूंगा आपके माध्यम से, जो जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं. जो एक 1927 में एक डॉक्टर थे, ही वाज अ साइंटिस्ट एज वेल फ्रॉम जर्मनी, डॉक्टर ऑटो वॉरबर्ग. या Okay. उन्होंने 1927 में कुछ खोज की थी, और उस खोज को समझने में 7 साल लगे. और जब वो समझ आए तो उस डॉक्टर ऑटो वॉरबर्ग को 1931 में नोबेल प्राइज दिया गया था. या सो उन्होंने बताया था कि कैंसर की रूट कॉज क्या है. कब? 1927. 27. या और Okay. आज अगर आप किसी डॉक्टर, किसी ऑन्कोलॉजिस्ट से भी उनका नाम पूछेंगे तो उनको नहीं पता होगा. Nobel Prize is a very big thing. It needs the whole life dedication, you know. पूरी लाइफ उन्होंने इस फील्ड में लगाया, तब जाके उनको वो अचीवमेंट मिला, and he was awarded a Nobel Prize for it. So he simply said that cancer is caused by acidity. Oh, as simple as that. Absolutely. Yeah. So अब उनकी डिटेल में नहीं जाएंगे, बिकॉज एवरीवन कैन गूगल अबाउट इट. ऑल द इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल देयर. तो यहाँ मैं थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन दूंगा कैंसर सेल के ऊपर. आपने देखा कि मैंने आपको बताया -25 अगर सेल के पास में चार्ज है तो वो हेल्दी है. -25 से कम हुआ तो वो बीमार है. या और ये चार्ज जितना ज्यादा कम होगा, बीमारी उतनी ज्यादा बड़ी होगी. Okay. तो जब हमने कैंसर सेल के ऊपर इसको इस डेफिनेशन से एनालाइज किया, तो वी फाउंड कि कैंसर सेल ऑपरेट्स ऑन +30 millivolts. Okay. Yeah, and this is something which can change everything in this field, but I don't know why people are not interested to know about it. So, are there no research that is going on right now in the world about it, or If you go on Google Scholar, yeah, you'll find a lot of information on where people have worked on electron therapy, where people have done a lot of work on negative charge supplementation for curing diseases. There are many studies available. But इसको क्यों प्रोपेगेट नहीं करते, क्यों इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं, आई हैव नो आइडिया. और मेरे करियर में एक बहुत बहुत बड़ा लीप आया when I got one German research which was done by some scientists. They concluded in that research that अगर आप -80 millivolt का चार्ज किसी भी कैंसर सेल में सप्लीमेंट कर सकते हो, डाल सकते हो, तो कैसा भी कैंसर मर जाता है. Okay. Yeah, so it's a very big statement, but I found no one working on it. Oh, really? So I decided to check it out, and once I implemented this in my practice was totally transformed. वो लोग जो जिनका कैंसर से मरना निश्चित था, तो जिनको 2 महीने की जिंदगी बची थी या 6 महीने की बची थी, they started getting healthier by simply supplementing this negative charge in their body. So you are saying that you have helped patients, treated patients, I would say,
through this practice of yours of giving them the right charge which is required, Absolutely. and that has either prolonged their life or they have actually reversed cancer altogether. Any disease can be reversed by simply providing enough negative charge to the body, to the Wow. cells. आप देखिए, ऑब्जर्व द नेचर. नेचर ने वो डिज़ाइन बनाया है जिससे हमें कंटिन्यूअस नेगेटिव चार्ज मिलता रहे. हम जब बेयर फिट चलते हैं धरती पे या घास के ऊपर जब चलते हैं तो हमें इलेक्ट्रॉन्स मिलते हैं अर्थ से. या सो अब अर्थ हमें कब अवेलेबल होती है पैदल चलने के लिए? 24/7 हमें ये सिस्टम बना के दिया गया. लेकिन हम स्मार्ट हुए, हम इंटेलिजेंट हो गए, हमने सिंथेटिक सोल वाले जूते पहनने शुरू किए. इफ यू रिमेंबर, एंशिएंट टाइम्स में जब जूते पहनते थे या तो वो लकड़ी के होते थे या लेदर के होते थे. या एंड लेदर कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी. सो इन दैट टाइम आल्सो people were getting this electrons negative charge through the earth. Okay. या अब मुझे एक चीज बताइए, जंगल में जो जंगली जानवर रहते हैं, या द wildebeest, द लायंस, जो सिर्फ जंगल में रहते हैं, कभी आपने सुना किसी प्रोग्राम में एनिमल चैनल पर या डिस्कवरी चैनल पर कि किसी को हार्ट अटैक हुआ या किसी को कैंसर हुआ? एंड माइंडेड, ये जो प्रोग्राम्स बनते हैं एनिमल चैनल जैसे चैनल्स पर, वहाँ पे जो लोग बनाते हैं वो पूरी जिंदगी अपनी डेडिकेट कर देते हैं पर्टिकुलर एनिमल स्पीसीज को लेके. दे लिव देयर लिटरली 24/7. सो they have seen their lifestyle, they have seen their generations. Has anyone reported किसी को कोई क्रॉनिक बीमारी होती है? कभी आपने सुना? And that's the reason, because they are following the nature's principle. नेचर ने आपको नेगेटिव चार्ज धरती से देने का डिजाइन बनाया और हम उससे कट ऑफ हो गए जूते पहनने के बाद. द सिंथेटिक सोल शू. ओके, तो आप कह रहे हो कि कुछ हमारे लाइफस्टाइल की वजह से भी हमें जो ये आज के टाइम में डिजीज़ हैं ये बढ़ गए हैं. तो कुछ ऐसी प्रैक्टिसेस भी हैं जो हम इंक्लूड कर सकते हैं अपने लाइफस्टाइल में, थ्रू विच वी कैन गेट दोज फ्री इलेक्ट्रॉन्स. जैसे मैंने आपको बताया कि आप बेयर फीट जब आप चलते हैं तो इट इज कॉल्ड ग्राउंडिंग, या लोग इसको अर्थिंग कहते हैं. या सो इट्स अ वेरी गुड प्रैक्टिस. Or there are many doctors who are guiding their patients, and they're curing diseases by simply grounding the bodies. Okay. And is there anything which we can also include or in our food or in our drinks which could, help a patient or just normal people that I would say just follow the nature. Okay. नेचर ने जो दिया है उसको उसी तरीके से आप लें, उसी वक्त लें जिस वक्त उसको लेने का प्रावधान बनाया गया है. But let me, okay, you are asking so many questions. Let me ask you one question here. Yeah. So we were talking about cancer. So because I'm an oncologist. Yeah. So let me ask you one question. हमारी body is made out of trillions of cells. Yeah. और उसमें बहुत सारे organs हैं. Right. या सो हमारी बॉडी में एक ऐसा ऑर्गन है जिसको कभी कैंसर नहीं हो सकता. इट्स अ कैंसर प्रूफ ऑर्गन. कभी सुना आपने? ओके, कैन यू गेस? नो, नॉट राइट नाउ. ये क्वेश्चन अगर आप किसी डॉक्टर से भी पूछेंगे उसको भी नहीं पता होगा इसका आंसर. या कभी आपने सुना किसी को दिल में कैंसर हुआ, हार्ट में कैंसर हुआ? ओके, कभी सुना? नॉट दैट आई एम अवेयर ऑफ, बट नो, नहीं सुना. या तो जो मैं कह रहा हूँ 1% सच हो सकता है. या मे बी. या तो दिस इज अ फैक्ट दैट जो हार्ट है उसका जो कोर मसल है उसके सेल को कभी कैंसर नहीं होता. ओके. या और एंटायर मेडिकल हिस्ट्री में ऐसा कभी नहीं हुआ. तो दिस वाज, जब मुझे ये पता लगा तो इट वाज अ शॉक फॉर मी, बिकॉज
मुझे पढ़ा लिखा कर oncologist बनाया गया, and not even single book in my whole course told me this कि उसमें कहीं mention नहीं था इस चीज़ के बारे में, और इतनी बड़ी Mm-hmm. it's a big information. So I went to my professor and I asked कि ये आपने मुझे क्यों नहीं बताया. Hmm. So they were also awestruck and they said हमें भी नहीं पता था. But then I asked them, okay fine, मैंने accept किया कि आपको नहीं पता था इसलिए आप मुझे नहीं बता पाए. So I asked them, आपके पूरे करियर में, अब आप रिटायर्ड हो, आपके पूरे करियर में क्या आपने एक पेशेंट देखा जिसको कभी हार्ट में कैंसर हुआ? तो ये said no. And that's the time when I came to know कि अब अगर इसका solution, इसका आंसर मुझे ढूंढना है तो मुझे ही रिसर्च करनी होगी. और it took a long time for me to find the reason why ऐसा क्यों होता है. The reason is very simple, and it shows how perfectly the nature works. Nature has designed the heart cell to operate on minus 120 millivolts. Oh, And that's the okay. reason, that's a simple reason why heart never gets cancer. Okay. Yeah. So जो मुझे जर्मन का स्टडी मिला था विच सेड -80 मिलीवोल्ट अगर आप सेल में डालेंगे तो कैंसर मर जाएगा. एंड व्हेन आई लिंक बोथ दीज इंफॉर्मेशन आई गॉट ऑल माय आंसर. So this is perfectly fitting with the charge and electron theory that we are discussing, Exactly. which you are researching on. Exactly. Wow, that's massive. Like, I think this is the first time I'm hearing something like this. I can understand. I really want more doctors to read about it, to do the research and work on it, because ये एक ऐसी opportunity है which can change the fate of all humanity. And since we are talking about charge and electrons, so I remember when we were discussing earlier, you told me something about Kangen water also. So could you please say more about it? So Kangen water, it's a Japanese technology. Okay. And there was a person in my life who's an American. Now he's very aged and he's retired. He's the first person who actually trained me on how to treat cancer naturally. Yeah. So his name is Webster Care, and he's from America. Very gentleman and fine person. So he was the first person who told me about Kangen water. He said, he simply just briefly told me that Kangen water is very good for cancer, and if you can get hold of it, just try it. But that time, Kangen was not in India, and it was just the information came in my mind and it just stayed there. So in 2016, the company came to India and they established their office in India. Kangen is a Japanese word which means back to origin. So जैसा पानी नेचर ने ह्यूमन के लिए डिजाइन किया था, तो back to that. So that water is used in more than 180 countries, and people, we have testimonials of people where people have been able to cure almost every disease by simply drinking this water. And you know why? Because that water, Kangen water, contains minus 800 up to minus 800 millivolts of charge in every sip you drink. Okay. So this is one way. अगर आप you cannot walk barefoot on earth, this is another way to supplement your body with the negative charge. Yeah. And now that you're saying that this company has established their office in India, so anyone in India or like worldwide also, they can buy this machine yes. But see, the company does not claim that the water cures any disease. Okay. I have explained you the science behind the negative charge. And कोई भी चीज़ अगर आपकी बॉडी में नेगेटिव चार्ज सप्लीमेंट कर सकती है, so आजकल जैसे आपको डॉक्टर्स बोलते हैं कि you should
you should take a lot of antioxidant. अब Mm-hmm. उनके पास में synthetic options भी हैं, like vitamin C tablets. Yeah, if you Yeah. take that, the negative charge is there. All the antioxidants are nothing but with extra electrons in it. या डॉक्टर्स ये भी बोलते हैं कि आपको ताज़ा फल सब्जियां से Mm. एंटीऑक्सीडेंट मिलते हैं, Mm. आपको ग्रीन टी से एंटीऑक्सीडेंट मिलते हैं. ग्रीन टी को जब आप मेजर करते हो उसके अंदर कितना नेगेटिव चार्ज है, सो वी फाउंड अराउंड -40 के आसपास, मिलीवोल्ट के आसपास ग्रीन टी में नेगेटिव चार्ज होता है. एंड इट्स सो इफेक्टिव एंड पीपल आर ड्रिंकिंग इट. बट उसको जिस पानी में बनाया जाता है उसमें चार्ज होता है पॉजिटिव 200 और पॉजिटिव 300. तो अब मैथमेटिक्स में ज़्यादा अच्छा नहीं हूँ मैं, तो अब आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उसमें कितना नेगेटिव चार्ज बचता है. या Right. सो यस, Kangen water is just amazing. Water is, very important part in whole healing process, because as you know, as the science says that our body is 70% water. Mm-hmm. Yeah. और बाकी का जो भी है सब कुछ 30% है. Mm-hmm. तो अभी अगर आप देखें जो हेल्थ का सिनेरियो है वो ये है कि everyone is trying to make the 30% of the body healthy. चाहे वो कुछ भी कर रहे हैं, वो खा रहे हैं, वो मेडिसिन, Mm-hmm. वो खाना, वो सप्लीमेंट, वो खा रहे हैं, Mm-hmm. लेकिन 70% जो पोर्शन है जो कि सिर्फ पानी है उसके लिए कोई कुछ नहीं कर रहा है. Mm-hmm. जबकि आपने सुना, आपको बताया, बचपन से आपको बताया गया, आपने सुना है Mm-hmm. जल ही जीवन है. Correct. या इसको लिटरली अगर आप समझने की कोशिश करेंगे तो जल ही जीवन है. इफ एनीथिंग इज लाइफ फॉर यू, Mm-hmm. दैट इज वाटर. Right. तो क्या इसका इंडिया में भी कोई टेस्टिमोनियल है दैट how if somebody has incorporated this Kangen water in their lives or Barkha, there are millions of testimonials. As I said, 180 countries में इस पानी को पी रहे हैं लोग. Mhm. और लास्ट 51 years से ये मशीन अवेलेबल है इन द वर्ल्ड. Mhm. सो यू कैन से दिस इज अ वेरी लॉन्ग पीरियड. या तो इस पीरियड में, और अच्छी बात क्या है कि इस मशीन को जिसने बनाया था, हम उनको मिस्टर ओ बोलते हैं, ओशिरो. और उन्होंने इसको बेचने के लिए नहीं बनाया था. ही मेड द मशीन, और ही then after that he installed that machine in the government hospitals in Japan. और 20 साल तक, 20 years, वो केवल ये ऑब्जर्व करते रहे कि कौन सी बीमारी कितने दिन में इस पानी से ठीक हो रही है. एंड देन it was started in 1974. then 1994 में the first machine was sold. Yeah, so it was not for profit what it was created. It was created for the benefit of humanity. मुझे नहीं लगता आज की डेट में कोई ऐसा सेलिब्रिटी है जो कैंगन वाटर नहीं पी रहा है. शाहरुख खान का आपने नाम लिया, उसने आई थिंक 16 मशीन्स खरीदी हैं. 26 So, as yeah, we I don't remember remember the from figure. our Then Bill Gates bought 25 or 27 way back. It's a lot of in past. So मतलब इस पानी को कौन पी रहा है? डोनाल्ड ट्रम्प, बिल गेट्स, शाहरुख खान, धर्मेंद्र जी नहीं रहे, वो भी अभी रिसेंटली बॉट अ मशीन. एंड आप शिल्पा शेट्टी, अपने क्रिकेटर, बहुत सारे क्रिकेटर्स हैं, युवराज सिंह इज ड्रिंकिंग दिस वाटर. सो मतलब एक ऑप्शन अवेलेबल है. right. सो अगर कोई ऐसा अच्छा ऑप्शन अवेलेबल है तो क्यों नहीं ट्राई करें. And let's say for a normal person in India who wants to get this machine at least to improve their lifestyle, whether they have a disease or not. So you should ask why this machine, because see, हम 70% पानी से बने. हमारी बॉडी इज मेड लाइक एन एक्वेरियम. एक्वेरियम में क्या होता है? पानी और मछली. जब एक्वेरियम में पानी में मछली है और मछली मरने लगती है तो आप क्या करते हैं? हम लोग मरी हुई मछली को निकालते हैं
बाहर फेंकते हैं हम्म, और एक हेल्दी मछली को लाके उस एक्वेरियम में डालते हैं, या लेकिन पहली मछली जो मरी थी वो इसलिए मरी थी कि पानी गंदा था, हम्म, और कोई रीज़न नहीं था, पानी गंदा था। तो अब आपको अगर सेकंड मछली आपने उसी पानी में डाली तो क्या होगा? वो भी वो मरेगी। भी मर जाएगी। या तो अगर आपको सोल्यूशन चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा? पानी बदलना पानी पड़ेगा। बदलना पड़ेगा। या सो हम्म, अब मैंने कहा कि हमारी बॉडी भी एक्वेरियम की तरह बनी है, 70% पानी है, हम्म, बाकी के क्या है? सेल्स। हम्म, तो हम आज अपनी लाइफ में इस बॉडी नुमा एक्वेरियम को के अंदर सिर्फ मछलियां बदल रहे हैं। कैसे बदल रहे हैं? हम लोग दवा बदलते हैं, हम्म, हम लोग थेरेपीज बदलते हैं, हम्म, हम लोग डॉक्टर्स बदलते हैं, हम हॉस्पिटल बदलते हैं, हम आजकल घुटने बदलवा रहे हैं, लिवर ट्रांसप्लांट हो रहा है, किडनीज बदल रही हैं, या, लेकिन जो चीज़ बदलने की है, हम्म, पानी, उसके बारे में कोई सोच ही नहीं रहा। हम्म, जबकि जब अगर आपको मछलियों को मरने से बचाना है तो आपको पानी चेंज करना ही पड़ेगा, हम्म, एंड दैट्स अ डिजाइन मेड बाय द क्रिएटर। यू कैन नॉट चेंज दिस, हम्म, कैन यू? क्या आप अपनी बॉडी में 70% पानी कम रख के चल सकते हैं? नो, सो दिस इज समथिंग विच वी नीड टू गो बैक टू द नेचर। अब बहुत सारे और तरीके हैं अपनी बॉडी के अंदर नेगेटिव चार्ज को सप्लीमेंट करने के। I made this device. You can see this is called e-energizer. ओके, ये डिवाइस आपकी बॉडी के अंदर इलेक्ट्रॉन्स डालता है, सप्लीमेंट करता है, या ओके, और कितने इलेक्ट्रॉन्स डालता है? मैं आपको अगर मिलीवोल्ट से कंपेयर कराऊं तो कैंगन वाटर विच इज सपोज टू बी अ मिराकुलस वाटर, उसको उसको दुनिया में जो यूजर्स हैं, लोग हैं, वो इसको मिराकुलस वाटर बोलते हैं, क्योंकि उनका मानना है कि पानी पी के किसी भी डिजीज को ठीक किया जा सकता है, या और वो आपको -800 मिलीवोल्ट्स का चार्ज देता है, या सो व्हेन यू टॉक अबाउट माय डिवाइस, दिस डिवाइस supplement -30,000 volts in your body. Do you understand the difference? So ओके, 1 वोल्ट में या, 1000 मिलीवोल्ट्स होते हैं. So you राइट, see the difference. So it's an atomic blast when you talk about. So अगर इसको आप कैलकुलेट करें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में, तो approximately 32 billion electrons get inside your body per second when you use this device. okay. So, you have only made this machine and, or is it developed by? Yes, yes. I was working on this concept for a very long time, and then in 2020 we launched it, and we are exporting it in 14 countries right now. Oh, wow. और ऐसी कोई बीमारी नहीं है जिसके ऊपर हमने इसको टेस्ट नहीं किया है, Okay. and so this And you is have always seen a positive outcome. absolutely, there is no side effect of this therapy, because this therapy is designed by the creator. This is a design of creator to supplement electrons in the body for making the body healthy. या Okay. हम अगर मैं आपको एग्जांपल से समझाऊं, हम हमें कैसा बनाया गया है, हमें एक बाल्टी की तरह बनाया है, वी आर लाइक अ बकेट जिसके नीचे छेद है, उसमें से पानी निकलेगा ही निकलेगा, यू कैन नॉट स्टॉप दैट बिकॉज ऑक्सीडेशन इज गोना हैपन। लेकिन हमारे हाथ में क्या है, हम उसमें कितना पानी डालकर उसको भरा रख सकें, या सो आप जितना ज़्यादा डालेंगे वो उतना भरा रहेगा, उतना हेल्दी रहेगा। सो सेम थिंग दिस मशीन डज, it supplements enough more than sufficient electrons, because इलेक्ट्रॉन्स एक ऐसी चीज़ है जो कभी स्टेबल नहीं हो सकती, या अगर पंखे में भी आप बैठे हैं तो आपके स्किन से इलेक्ट्रॉन्स वो हवा चुरा रही है, या सो Yeah. यू नीड टू ऑन अ कंटिन्यूस बेसिस यू नीड टू refill your body with electrons. Right. And I just again want you to emphasize on this, that you are saying any kind of disease, let's say, okay, we talked about cancer, but something as simple as somebody has PCOS or hormonal issues there. So any kind of issue can be treated
or healed with this device? I don't want to take this to the controversy. Let's talk about the science so that you can Okay. understand. So any disease you name, Mm-hmm. the reason behind is that the cell is malfunctioning. Cell is malfunctioning. Cell is malfunctioning because of lack of electrons. Yeah. Yeah. So if you are able to provide the electron to the cell, Mm-hmm. you're taking the sick cell back to the healthy state. So Okay. this covers everything. Okay. Yeah. Or we are working on a very I would say different concept these days. I wanted to talk about it also, if you allow me. Yeah, please. So हमारी बॉडी में 70% पानी है, ये तो पता है सबको. Mm-hmm. और उसके अंदर H2O पानी. या सो 2 एटम हाइड्रोजन के है, 1 एटम ऑक्सीजन का है. Mm-hmm. Yeah. अभी ऑक्सीजन के बारे में आप क्या समझते हैं? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड? व्हाट इज ऑक्सीजन फॉर यू? आपको क्या पढ़ाया गया है? We ऑक्सीजन. need oxygen to live, otherwise we breathe it Oxygen is in. life. Life cannot exist without Yeah. oxygen. Yeah. Yeah. This is what. We are Okay. taught. अभी आपको पता है इंग्लिश लैंग्वेज किसने बनाया था? No. मुझे भी नहीं पता. लेकिन जिसने भी बनाया था उसने 2 शब्द बनाए, ऑक्सीजन Hmm. एंड ऑक्सीडेशन. Okay. इसमें कुछ कॉमन दिख रहा है? Oxy. ऑक्सी. क्यों? क्योंकि उसको पता था ऑक्सीजन से ऑक्सीडेशन होता है. Right. एंड दिस इज व्हाट द साइंस सेज. Mm-hmm. सो अगर ऑक्सीजन से ऑक्सीडेशन हो रहा है, Mm-hmm. ऑक्सीजन का रोल क्या था? हमें बूढ़ा करना, हमें बीमार करना और हमें मार देना. Yeah. तो इसका मतलब ऑक्सीजन हमें क्या दे रहा है? बीमारी, Yeah. Slow death. एजिंग एंड डेथ, नॉर्मल डेथ. Yeah. आई एम नॉट सेइंग ऑक्सीजन बुरा है. आई एम ट्राइंग टू शो यू द रोल ऑफ The role. ऑक्सीजन. Yeah. ऑक्सीजन ठीक है, जरूरी है. वो क्रिएशन का पार्ट है. Mm-hmm. अब अगर इसको आप एक्सप्लेनेशन देना चाहेंगे इसके, तो इसका एक ही एक्सप्लेनेशन है कि नेचर का टूल है ऑक्सीजन टू रिसाइकल द मैटर. Okay. अब अर्थ है, इससे ना तो कुछ बाहर जाएगा ना कुछ अंदर आएगा. तो जो भी मैटर है उसको रिसाइकल होना पड़ेगा, नहीं तो आने वाली जनरेशन को क्या मिलेगा? या तो उसको रिसाइकिल करने के लिए नेचर का टूल है ऑक्सीजन. इट ऑक्सीडाइज द मैटर टू प्रोवाइड फॉर कमिंग जनरेशन, एंड दिस इज नेसेसरी फॉर द कंटिन्यूएशन ऑफ द लाइफ साइकिल. गेट इट? ओके. तो अब जो चीज हमें बीमार कर रही है और जो चीज हमें मार रही है और जो चीज हमें बूढ़ा कर रही है, क्या हम उसको लाइफ कह सकते हैं? Not exactly. Yeah? Not exactly. लॉजिक. Mhm. ओके. सो अगर आप मेरे जैसे एक उलझे हुए इंसान से पूछेंगे तो मैं आपको बोलूंगा कि डेथ कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट ऑक्सीजन. Okay. आपने सुना है हमारे एंशिएंट माइथोलॉजी में ऋषि मुनि जो होते थे वो हजारों साल जीते थे. Mhm. या ऐसा सुना है? Yeah. बिल्कुल. सो वो कैसे जीते थे? वो उसको योग का नाम दिया गया. और योग में क्या करते थे वो? प्राणायाम. द फर्स्ट प्रैक्टिस ऑफ योगा स्टार्ट्स विद प्राणायाम. और बहुत तरह के प्राणायाम. या प्राणायाम का क्या मोटिव है? प्राणायाम का मोटिव ये है कि आप प्राणायाम के मदद से, प्रैक्टिस से अपने बॉडी की ऑक्सीजन कंजम्पशन को कम से कम कर पाएं. Okay. या तो प्राणायाम में इनहेल, देन कुंभक एंड देन रेचक. Right. रिलीज, एक्सेल. कुंभक क्या है? अब आपने इनहेल किया, आपके इनहेलेशन से एयर गई, उसके अंदर साइंस कहती है अराउंड 23% ऑक्सीजन होता है. वो अंदर जाते ही कंज्यूम हो गया. अब अंदर क्या बचा? कार्बन डाइऑक्साइड. या अब कुंभक में आपने क्या रोका अपने अंदर? कार्बन डाइऑक्साइड. कार्बन डाइऑक्साइड. क्यों? Because somehow they were training their bodies कि वो कार्बन डाइऑक्साइड को यूज करे और Maybe. ऑक्सीजन. Maybe.
या पॉसिबिलिटी, हम्म, बट उन्होंने कार्बन डाइऑक्साइड को रोका और उसके बाद उसको रिलीज किया। हम्म, अब इस प्रैक्टिस से उनका गोल क्या था? टू अचीव समाधि। क्या समाधि में ऋषि या मुनि या जो समाधि में जो समाधि को अचीव करते हैं, क्या वो सांस लेते हैं? नहीं। नहीं। तो जब सांस अंदर नहीं जाएगी तो ऑक्सीजन अंदर नहीं जाएगा, और अगर ऑक्सीजन अंदर नहीं जाएगा तो क्या नहीं होगा? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन नहीं और होगा। अगर ऑक्सीडेशन नहीं होगा तो क्या कोई बूढ़ा होगा? नहीं। तो क्या लॉन्जेविटी अचीव की जा सकती है? थ्योरेटिकली यस। Yes. डू यू So अंडरस्टैंड द साइंस बिहाइंड दिस नाउ? a little, I would say. Okay. Yeah. So Okay. please continue and So if you see in some science book, you will get this statement that oxidation, oxygen is an oxidizing agent. Yeah. Mhm. Okay. So this concludes the oxygen part of the water. Mhm. Yeah. What about hydrogen? H2, which is double the size volume of oxygen. Oxygen. आपको पता है आपकी बॉडी में कितना हाइड्रोजन है? Not exactly. आपकी बॉडी के अंदर जो 70% पानी है, Water. उसका 2/3 हाइड्रोजन है। Hmm. या अब हाइड्रोजन अगर इतना है, क्या सोचते हैं आप कि आपकी बॉडी में सबसे ज्यादा पाए जाने वाला एलिमेंट क्या हुआ? So then it's hydrogen. हाइड्रोजन, Right. ऑब्वियस। और आपकी बॉडी को सबसे ज्यादा जरूरत किसकी हुई? Should be hydrogen. हाइड्रोजन। या Hmm. परफेक्ट। सो अब हाइड्रोजन का रोल क्या है? व्हाट इज हाइड्रोजन? हाइड्रोजन इज द फर्स्ट एलिमेंट इन पीरियोडिक टेबल। Hmm. Yeah, it is the smallest atom, which even if we talk about size, and it is called donor. Mhm. It donates electron. Mhm. Yeah, वो तुरंत इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। और हमें नेगेटिव चार्ज में क्या चाहिए होता है? Electron. इलेक्ट्रॉन। तो नाउ डू यू गेट इट कि क्रिएटर ने हमारे बॉडी के अंदर 2/3 Hmm. हाइड्रोजन क्यों डाला? So that we get enough electrons. ओके, सो हमें इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे हाइड्रोजन से। Mhm. अब देयर इज अ प्रोसेस इन आवर बायोकेमिस्ट्री इनसाइड अ बॉडी। हमारी बॉडी कैन जनरेट Mhm. हाइड्रोजन, बट ओनली इफ वी टेक इनफ फाइबर इन आवर डाइट। आज हम फाइबर कितना खा रहे हैं? Hmm. Rarely. एवरीथिंग इज रिफाइंड। Hmm. या सो फाइबर नाम की चीज मिनिमम ना के बराबर जा रही है। Hmm. तो उससे हो क्या रहा है? जो हाइड्रोजन है Mhm. वो कम हो रहा है। Okay. Yeah. So there is a explanation which I usually give to people, that every disease can be monitored, can be said that is nothing but deficiency of hydrogen in the body. You know why? Very interesting. क्योंकि हमने कैंगन वाटर की बात किया है, तो आप जो पानी पीते हैं, बिस्लरी, एक्वाफिना, Hmm. RO water, whichever water you're drinking in any part of the world, Hmm. except Kangen water and likewise, उसके अंदर नेगेटिवली चार्ज्ड हाइड्रोजन है ही नहीं। Oh. या और उसकी वजह से हमें जो पानी से इलेक्ट्रॉन्स Hmm. हाइड्रोजन से मिलने थे, Mhm. वो हमें मिल ही नहीं रहे। सो अगर हाइड्रोजन के अंदर, पानी के अंदर नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स नहीं हैं, Mhm. तो वो ऑक्सीडेटिव बन गया। या और Okay. अगर नेगेटिवली चार्ज्ड हाइड्रोजन है, Hey. तो वो दैट वाटर बिकम्स एंटीऑक्सीडेंट, विच इज द ऑपोजिट ऑफ ऑक्सीडेशन, Mhm. जिसकी वजह से सारी प्रॉब्लम्स डेथ तक होती हैं। डू यू रियलाइज द इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ हाइड्रोजन नाउ? Yeah. सो इसको अगर हम सम अप करें, लिंक करें, Mhm. तो ये सारी चीजें कहाँ पे लिंक होती है? आपकी बॉडी के अंदर बीमारी होगी जब एसिडिटी बढ़ेगी सेल्स में, Mhm. उससे ऑक्सीडेशन बढ़ेगा और इलेक्ट्रॉन्स कम होंगे।
या और अगर आपकी बॉडी को हील करना है, क्योर करना है, जो कि आपकी बॉडी ही कर सकती है, तो उसको इलेक्ट्रॉन्स सेल्स को प्रोवाइड करना है, चाहे वो करेक्ट। बाहर से करे, चाहे वो खुद जनरेट करे। तो वो खुद कैसे जनरेट करती है? वो फाइबर से। जब आप फाइबर खाते हैं तो उससे आपकी बॉडी हाइड्रोजन जनरेट करती है। या अच्छा, अब हाइड्रोजन से एक्चुअली हो क्या रहा है? हाइड्रोजन आपको प्रोवाइड कर रहा है इलेक्ट्रॉन्स। ओके। अब एक कंडीशन होती है कि बॉडी नए सेल कब बना सकती है और कब नहीं बना सकती। या तो हेल्दी रहने के लिए सेल को मिनिमम कितना चाहिए? -25 मिलीवोल्ट्स। अब सेल को डिवाइड होना है, नए सेल अगर बनने हैं, तो सेल को डिवाइड होने के लिए चाहिए -50 मिलीवोल्ट्स ऑफ चार्ज। करेक्ट। अब आपकी बॉडी में अगर ये कैपेबिलिटी है कि वो सेल को -50 मिलीवोल्ट का चार्ज दे सकती है, तो नए सेल बनेंगे, नहीं तो नए सेल नहीं बनेंगे। और क्योर के लिए आपको जिंदगी भर दवाओं पर निर्भर रहना पड़ेगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। And on cure, I have one more question, which is very basic. Like, I suffer from hair fall, and lots of people are suffering from hair fall, which is a common problem. तो क्या through this electron and सिचुएशन को समझिए, charge सिचुएशन को therapy, समझिए, we हो क्या can? रहा है। आपके हेयर के दो पार्ट हैं, Mm-hmm. एक हेयर और एक उसका रूट फॉलिकल, या जहाँ पे वो होता है। तो वो सेल से बना है, या और उसके अंदर ऑक्सीडेशन होने की वजह से वो डीजनरेट हो रहा है। इट इज नॉट एबल टू फंक्शन प्रॉपर्ली। उसका फंक्शन क्या है? टू रिमेन स्ट्रांग इन द फॉलिकल। या अब बिकॉज ऑफ ऑक्सीडेशन वो डीजनरेट होता है और वो लूज हो जाता है और वो झड़ जाता है। Okay. तो अगर आप बॉडी को कैपेबल करते हैं, बॉडी को सप्लीमेंट करते हैं इलेक्ट्रॉन से, तो क्या सेल वापस हेल्दी होंगे? Right. तो क्या बाल सेल से बने हैं? Of course. तो क्या रीजनरेशन पॉसिबल है? Okay. So that can also happen. या योर बॉडी is the most perfect machine ever built on the face of the earth. ये एक ऐसा कारनामा, एक ऐसा अजूबा बनाया है जो कि परफेक्ट है, हर कोण से परफेक्ट है। Yeah. प्रॉब्लम कहाँ आ रही है? हम उस परफेक्शन को यूज करने की बजाय हम उसको बेटर करने की कोशिश कर रहे हैं, एंड दैट प्रोसेस इट इज गेटिंग डिस्ट्रॉयड। Right. छोटी छोटी सी चीजें हैं। अब पूरे क्रिएशन में सबसे ज्यादा चीज क्या है? पानी। या और पानी के अंदर सबसे ज्यादा चीज क्या है? Hydrogen. सॉल्ट। Okay. या एलिमेंट सॉल्ट। अब क्रिएटर ने इतना पानी क्यों दिया? बिकॉज उसकी जरूरत थी। इतना सॉल्ट क्यों दिया? Maybe that was also नीडेड। required. क्या नेचर ने ऐसा कुछ दिया जिसकी जरूरत नहीं है? नहीं। तो सॉल्ट इतना क्यों दिया? उसकी जरूरत थी। एब्सोल्युटली थी। अब मैं आपको एग्जांपल से बताता हूँ। आपको पता है अगर किसी को हार्ट अटैक आता है तो सबसे पहले जो नर्स या डॉक्टर वहाँ जो भी पहुँचता है वो पेशेंट को क्या देते हैं? उसको ड्रिप चढ़ाया जाता है, एंड दैट ड्रिप इज कॉल्ड NS, नॉर्मल सलाइन। उसको 2 ड्रिप्स चढ़ते हैं एक साथ फटाफट, या और उस NS के अंदर, उस बॉटल के अंदर क्या होता है पता है आपको? सॉल्ट। कितना होता है? सॉल्ट कितना होता है पता है? 9000 mg। 9000 mg। Yeah, like I'm talking science, very I'm talking large medical quantity. language. So अगर उसको 2 NS drips चढ़ रहे हैं तो they are feeding the patient, the dying person, with 18,000 mg of salt, and the patient revives. Okay. Are you getting the power of salt? Yeah. और हमें क्या बोला जाता है? सॉल्ट कम लेना, कम खाना, कम हमेशा। या क्यों? सो दैट्स अ मिथ। ये बिल्कुल एक गलत फैक्ट है। अगर मिथ नहीं है तो फिर पेशेंट को, मरते हुए पेशेंट को आप 18,000 mg सॉल्ट दे के मारना चाह रहे हो क्या?
Interesting. Yeah. Okay. So salt has a very major role in our health. Hmm. जैसे पानी है, पानी के साथ आपको आई टॉक अबाउट सी सॉल्ट बिकॉज जो नॉर्मल रिफाइंड सॉल्ट है दैट्स अ पॉइजन फॉर अस. आयुर्वेद कहता है कि कोई भी अगर हम सिंगल मॉलिक्यूल खाते हैं तो Hmm. दैट इज अ पॉइजन फॉर अस. आपको नेचर कोई भी सिंगल मॉलिक्यूल नहीं देता है. आपको अगर कोई फल दिया है तो उसमें विटामिन सी है, विटामिन ए है, मिनरल्स है, सो मेनी थिंग. इट्स अ कंपाउंड, इट्स अ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड. Hmm. तो अगर आप सोडियम क्लोराइड की बात करें, रिफाइंड सॉल्ट की बात करें, तो Hmm. उसके अंदर कुछ है ही नहीं, कोई मिनरल नहीं. वाई? बिकॉज पहले क्या होता था, सॉल्ट बनाने के लिए सॉल्ट सी वाटर को समुद्र के किनारे बिछा देते Hmm. थे और वो सूखता था Hmm. और स्लोली एंड ग्रेजुअली सूख के वो नमक बनता था, हम उसको यूज करते थे. उसके अंदर खुद भी मिनरल्स होते थे और सॉल्ट से भी बहुत सारे मिनरल्स वो अपने अंदर ऑब्जॉर्व कर लेता था. Hmm. सो अगर आप सी सॉल्ट की बात करें, अप टू 82 मिनरल्स उस सी सॉल्ट में आपको मिलते हैं. या Hmm. अब कमर्शलाइज हुआ तो सॉल्ट को जल्दी सुखाने के लिए उसको 2000 डिग्रीज हीट पर गर्म किया गया. उसमें से सब खत्म हो गया. Hmm. अब सिर्फ उसके अंदर उसका टेस्ट बचा है, सॉल्ट, नमकीन, Hmm. नथिंग एल्स. वो किस काम का है? वो आप लोगे तो आपको ब्लड प्रेशर हो जाएगा उससे, Hmm. क्योंकि आपकी बॉडी को मिनरल्स चाहिए अपनी. इट्स अ बिल्डिंग ब्लॉक. Right. या सो दिस इज समथिंग विच इज वेरी बेसिक. अब आपने कभी स्टीमर यूज किया है? Hmm. तो स्टीमर में अगर आप आजकल तो लिख कर आता है उसके ऊपर कि आप आरओ का पानी इस्तेमाल नहीं कीजिएगा. हाँ, हाँ. ये लिखा तो होता आरओ का पानी अगर आप स्टीमर में डालते हैं तो उसमें से करंट फ्लो नहीं होता है और वो गर्म नहीं होगा. है. तो हमारी बॉडी तो करंट से चल रही है. Correct. चल रही है. तो करंट फ्लो कैसे होगा अगर आप सॉल्ट की डेफिशिएंट हैं? Right. And the RO water also वो हमारे सारे minerals को निकाल देता है. एब्सोल्युटली. इट बिकम्स नियरली ब्लैंक, डेड वाटर. हाँ. और जितने भी नेचुरल सोर्सेज ऑफ वाटर है, जैसे झरना है, पहाड़ों पे पानी आता है, नदियों में, उन सब में नेगेटिवली चार्ज्ड हाइड्रोजन होता है. Okay. या तो इसीलिए जब हम कभी वेकेशन पे जाते हैं और वहाँ का पानी पीते हैं तो हमें अच्छा लगता है. अरे पहले क्या बोलते थे, कोई बीमार पड़ता था तो हवा पानी चेंज करो इसका, अच्छा. बोलते थे. हाँ हाँ. दैट वाज वेरी साइंटिफिक स्टेटमेंट. Hmm. या सो देयर आर थिंग्स विच एंड वी, जो भी मैंने आपको फिगर्स दिए हैं, -25 मिली वोल्ट, -50 मिली वोल्ट्स, दे आर ऑल रिसर्च फिगर्स. डॉक्टर जेरी टेनेंट का एक्सटेंसिव वर्क अवेलेबल है. आई टोल्ड यू द नेम ऑफ द बुक वाज द हीलिंग इज वोल्टेज. हीलिंग इज वोल्टेज बाय डॉक्टर जेरी टेनेंट. ओके. Yeah. सो डॉक्टर विवेक, क्या आप हमारी ऑडियंस के लिए कुछ ऐसे टिप्स दे सकते हैं विच दे कैन इंक्लूड इन देयर लाइफस्टाइल आज के टाइम में टू हैव सम प्रिवेंटिव मेजर्स सो दैट दे रिमेन हेल्दी? उससे पहले मैं आपको एक बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर से का इंफॉर्मेशन देना चाहूँगा कि हमारी लाइफ स्टाइल में बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जो हमें हमारी हेल्थ को इम्पैक्ट कर रही हैं और बहुत बुरे तरीके से कर रही हैं. उनमें से सबसे एक बड़ा फैक्टर है रेडिएशन. और रेडिएशन आपके वाईफाई राउटर से आ रहा है, आपके मोबाइल से आ रहा है. और आजकल तो हम देखते हैं छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो दिन भर मोबाइल पर लगे रहते हैं. कैन यू इमेजिन, जो आपका वाईफाई का राउटर है वो जिस फ्रीक्वेंसी पे काम करता है, दैट्स द सेम एज योर माइक्रोवेव. आपके माइक्रोवेव के अंदर खाना पानी उबल जाता है. या तो द सेम फ्रीक्वेंसी इज ऑल अराउंड यू होल योर डे. आपके ऑफिस में, आपके घर में. सो रेडिएशन, और देयर आर सो मेनी स्टडीज अवेलेबल. आप गूगल स्कॉलर पे जाइए, देयर आर सो मेनी स्टडीज विच हैव प्रूवन, मतलब इतना तक प्रूव कर दिया है कि जिस साइड पे आप ज्यादा फोन लगाते हैं उस साइड पे आपके ब्रेन में ट्यूमर्स डेवलप होते हैं. Oh God. इट इज देयर इज अ स्टडी अवेलेबल दैट अगर आप फोन अपना ज्यादा पास में रखते हैं तो इम्पोर्टेंसी कॉज करता है. योर इनफर्टिलिटी रेट जो है आपका वो डाउन चला जाता है. एंड इट इज एग्जैक्टली व्हाट इज हैपनिंग. फर्टिलिटी रेट
all around the world is going down. And radiation is the main cause. One of the main One cause. of the main अब causes. हमें दिख नहीं रहा, तो इसका मतलब ये थोड़ी कि कुछ हो नहीं रहा। Hmm. आप देखिए, एक चिड़िया होती थी हमारे यहाँ, छोटी स्पैरो बोलते थे शायद उसे, और अब वो देखने को नहीं मिलती है। बिल्कुल नहीं, बहुत ही कम शायद। क्या उसको किसी ने मारा है, कोई शिकार किया? लेकिन जब से मोबाइल आए हैं, उनकी पॉपुलेशन कम होते होते अब वो नियरली एक्सटिंक्ट हो गई हैं। शहरों में तो दिखती ही नहीं। अगर कोई चीज चिड़िया को मार सकती है, तो क्या वो हमारे बॉडी के ऊपर इम्पैक्ट नहीं करेगी? अब सवाल उठता है कि अच्छा, अभी तक तो पता ही नहीं था, अब पता लग गया, तो अब क्या करें? मतलब अब टेक्नोलॉजी है तो उसके लिए we cannot live without it. Absolutely, that's a way of life now. So ab there are ways how you can save yourself, save your families. I've heard about a device which has been made. The concept of that device is very revolutionary. I mean, the science says it's not possible to get rid of radiation, but there is a technology. It's called scalar wave. Scalar wave is a zero frequency wave. It's a kind of a quantum field. Yeah. तो उसमें जो भी फ्रीक्वेंसी वेव होती है, जो पार्टिकल्स को वाइब्रेट करके जो वेव बनती है, जैसे ही वो उसके अंदर आती है वो न्यूट्रलाइज हो जाती है, और उसके जो आफ्टर इफेक्ट्स हैं वो न्यूट्रलाइज किए जा सकते हैं. So we are very fortunate that one of my friend has come up with such a device. It's called Radical, and it's a great device. It's you can actually see on the radiation detector that you switch on the device and the radiation becomes zero. Oh. Yeah. So उसकी अपनी limitations हैं. They are the things like उसका radius कितना है, वो सब डिटेल्स मेरे पास में अभी नहीं है, बट यस, एक हाउस होल्ड के लिए बहुत अच्छा डिवाइस है. आप अपनी कार में रख सकते हैं. व्हेन यू गो फॉर अ लॉन्ग ड्राइव, डोंट यू फील ड्रेंच्ड आउट? या सो इट इज बिकॉज योर कार इज फुल ऑफ रेडिएशन. आजकल तो ईवीज आ गए हैं, और and we all have desk jobs, like पूरा दिन लैपटॉप के सामने बैठने के बाद we just feel like exhausted. एब्सोल्युटली. अब मुझे एक चीज बताइए, आपको हर गली नुक्कड़ पे आजकल फर्टिलिटी क्लिनिक्स मिल रहे हैं. वो क्यों मिल रहे हैं? बिकॉज there are many studies which has proven that these radiations are making people impotent. The generations will not be able to produce babies. But yes, the solutions are available. But and you need to get aware of them. And again, this device Radical, which kills radiation, it's again developed in India. Luckily, yes. Oh wow, that's amazing. Or there is a concept on which we have started working now. We are planning to open up a 200-bed hospital facility, and in this facility we are going to use all the quantum modalities which we use to heal people, help people come out of their conditions. So in this hospital we'll be using of course e-energizer, and we'll be using a non-linear scanner, which is I described in the starting, that we use the DNA of the patient. We don't even require the patient. Patient can be anywhere in the world, and if we have their DNA, we can treat them right from here. There's a concept in quantum physics which is called quantum entanglement. So viewers can actually Google about it, because you need to understand the concept. तो जो पहले जो नजर लगने का concept था, that is totally based on quantum, because quantum का एक रूल है, the rule of observation. So अगर आप किसी पार्टिकल को ऑब्जर्व करते हैं, तो उस पार्टिकल का नेचर चेंज हो जाता है.
या सो नजर लगना क्या है कि अरे उसको नजर लग गई, तो कैसे लगी, कैसे उसको ओ उसने ऑब्जर्व किया, और जिसको ऑब्जर्व किया उसका नेचर चेंज हो गया, उसके कैरेक्टरिस्टिक में कुछ चेंज आ हम्म गया, अब वो बीमार हुआ, उसको बुखार हुआ, वट एवर हम्म हैपेंड। या तो हमारी बॉडी के अंदर यू नो ऑल द मैकेनिज्म्स आर देयर टू हील इटसेल्फ, टू क्योर इटसेल्फ। अब हमें उसके बारे में कुछ इस तरीके से बताया गया है कि हम उसको प्रॉब्लम मान लेते हैं। अब हम्म जैसे बुखार होता है, या हम्म तो बुखार का मतलब बीमारी नहीं है, ये आपके बॉडी का एक तरीका है अपने आप को हील करने का। हम्म जब आपकी बॉडी के अंदर कोई इन्फेक्शन जाता है, हम्म कोई बैक्टीरिया या फंगल इन्फेक्शन गया, तो आपके जो बॉडी के अंदर सेंसर्स है, वो 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 इंफॉर्मेशन क्रिएट करते हैं ब्रेन के लिए, एंड द बॉडी स्टार्ट्स टू वाइब्रेट इट्स पार्टिकल्स टू इंक्रीज इट्स टेम्परेचर। व्हाई? बिकॉज जितने भी बैक्टीरियाज है, हम्म दे कैन नॉट सर्वाइव इन हीट, तो राइट बॉडी अपने आप को गर्म करती है, बुखार लाती है टू किल द इन्फेक्शन। और आप क्या करते हैं? तुरंत बुखार के लिए दवा लेते हैं, दवाई खा लेते हैं और और बुखार जो बॉडी का जो सिस्टम है उसको हम्म सबोटाज कर देते हैं। अब वो इन्फेक्शन नहीं मरेगा क्योंकि बुखार उतर गया, हम्म या अब बुखार उतर गया और इन्फेक्शन है, तो अब इन्फेक्शन ग्रो करेगा, हम्म और अगर इन्फेक्शन ग्रो करेगा तो अब आपको किसकी जरूरत पड़ेगी? दवा की। अब बिना दवा के वो इन्फेक्शन ठीक नहीं होगा, क्योंकि आपने अपने राइट सिस्टम को सबोटाज किया। हम्म या तो बुखार को लेके बहुत सारे मिथ है, बहुत सारे मिस इन्फॉर्मेशन है। हम्म बुखार से लोग घबराते क्यों हैं? क्या बोला जाता है? वो दिमाग में चढ़ जाएगा, ऐसा बोलते हैं। सो वो तब तक नहीं चढ़ेगा, इट इज बीन प्रूवन, देयर इज साइंस बिहाइंड इट। व्हाट इट सेज जब तक बुखार 108 डिग्री तक नहीं जाएगा, हम्म तब तक वो कुछ नहीं करेगा। 108 डिग्री पे वो ब्रेन कन्वर्जन करता है। या सो हम लोग बट हम 100 इतने ज्यादा डरे हुए हैं कि हम हम 100 पे भी, 100 पे भी हम गोली मैंने खा तो कुछ लेते लोगों हैं को देखा है वो 99 फीवर पे भी सबसे पहले वो, नहीं बुखार नहीं हम्म आ जाए। अरे, बॉडी इज ट्राइंग टू मेक यू हेल्दी। सो राइट एंड फर्स्ट ऑफ ऑल आई मस्ट से कि आप जो ये हॉस्पिटल ओपन कर रहे हैं दिस इज गोइंग टू बी अ रेवोल्यूशनरी थिंग मे बी इन द होल वर्ल्ड राइट नाउ. So many congratulations to you and all the best from me and my channel. Um, but also, again, if you could share a few tips that again the people around the world that they can follow to the have a healthier lifestyle. the first choice people have is either to work on the 30% of the body or 70% of the body to achieve good health. Mm-hmm. ये आपकी चॉइस है। या तो अगर आप 30% को चूज करते हैं कि आप 30% को हेल्दी करके, एंड यू आर थिंकिंग कि आपकी 100% बॉडी हेल्दी हो जाए, तो आप वो कर सकते हैं, जो Mm-hmm. कि आप हॉस्पिटल, डॉक्टर, मेडिसिन से, सप्लीमेंट से वो कर ही रहे हैं। दूसरा ऑप्शन है, आप एक्वेरियम की, आपकी जैसी बॉडी है बिल्कुल एक्वेरियम के जैसा, आप एक्वेरियम को अगर हेल्दी करना चाहते हैं तो आपको पानी चेंज करना है। Mm-hmm. So I very strongly recommend you change your water to Kangen water. And once you are able to do that, आपकी बॉडी के जितने भी सेल्फ रीजनरेटिंग प्रोसेसेस हैं, वो अपने आप बैलेंस होना शुरू हो जाते हैं, एंड द बॉडी स्टार्ट्स टू मेक न्यू सेल्स बिकॉज आपको नेगेटिव चार्ज मिलता है, और द क्योर स्टार्ट्स। बिकॉज अगर आप 30% को चूज करते हैं हेल्दी करने के लिए, तो why do I need to interfere in body's ability, body's work? वो 30% क्या है? सेल्स है, वो कौन बनाएगा? बॉडी का काम है बनाना। तो जब वो बॉडी का काम है बनाना, तो उसमें मैं इंटरफेयर करके क्या करूंगा? मेरा काम, मुझे पानी को चेंज कर देना है, बॉडी का काम शुरू हो जाएगा। Yeah, Right. so it's a very simple thing. So this is the first step I always suggest to anyone who asks me this question. And the second is the most important: you need to add sea salt
टू योर डेली लाइफ। और उसका बड़ा सिंपल सा तरीका है, जितनी बार भी आप पानी पिएं। मैं अभी ये नहीं बोलूँगा आपको कितना पीना चाहिए, इट विल बी ए कंट्रोवर्सी अगेन। सबकी अपनी अपनी डेफिनेशन होती है। कोई बोलता है प्यास लगने पे पानी पीना होता है। आपने देखा है कुकर पे कभी खाना बनाया आपने? या तो कुकर में जब प्रेशर ज़्यादा हो जाता है तो क्या होता है? सीटी और अगर सीटी ना बजे तो तो वो फट जाता है। फट जाता है। या तो सीटी बजना इज व्हाट इज द लास्ट स्टेप बिफोर इट ब्लास्ट्स। तो अगर आपको प्यास लगती है और आप पानी पीते हैं तो वो सीटी बजा दी है बॉडी ने, इट्स ऑलरेडी लेट। ओके। आपको पता है आपकी बॉडी के अंदर 70% पानी है, आपको उसको मेंटेन करना है। आपको इंटेलिजेंट बीइंग बनाया गया है, आपके पास में दिमाग दिया गया है। तो अगर आप वेट कर रहे हैं प्यास लगने की तो मतलब इट्स ऑलरेडी लेट, कुकर ने सीटी दे दी है। या सो जैसे आप अगर गाड़ी ड्राइव करते हैं तो उसके अंदर कंपनी ने 2.5 लीटर का ऑयल, इंजन ऑयल डालने के लिए बोला है। तो क्या आप उसको 2 लीटर ऑयल से चलाएंगे? नहीं चलाएंगे। तो आप उसको मेंटेन करेंगे। करेक्ट। क्या उसका कम होने का इंतजार करेंगे या उसको पहले ही मेंटेन करेंगे? नहीं, कोशिश रखेंगे पूरा ही रखें। सो एग्जैक्टली आपको अपने वाटर हाइड्रेशन लेवल को मेंटेन करके रखना है बिफोर प्यास लगे। Yeah, so this is what I suggest to change the water. Add salt. How you'll add salt? Take a pinch of sea salt every time just before you drink water. Okay. जब डॉक्टर 18,000 माइक्रोग्राम सॉल्ट आपकी बॉडी में तब डाल सकता है आपको जिंदा रखने के लिए जब बंदा मर रहा है। तो एक पिंच से तो मरेगा नहीं। या Right. 82 minerals. So your body needs, that's a building block, that's something what body needs, yeah, to be healthy. So and then of course balanced diet, and try to be as close as nature as possible, as because हम लोग खाने पे ध्यान देते हैं। जो 3 टाइम खाने का जो प्रोसेस है वो कभी इंसान के लिए था ही नहीं। हमारे एंसेस्टर्स तब खाते थे जब उनको खाना मिलता था। या और ये तो 3 टाइम का खाना का जो प्रोसेस आया है, ये एक घटना हुई थी जो एक फैमिली है रॉथस्चाइल्ड्स, जब वो फार्मास्यूटिकल में आए तब उन्होंने कुछ चीज़ें इम्प्लीमेंट करी। उनमें से एक चीज़ ये है कि इंसान को ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर की आदत डालो। हमें हमारी बॉडी का सिस्टम ये था कि हम जब फास्ट करते हैं तो हमारी बॉडी अपने आप को रिपेयर करती है, हील करती है। अभी रिसेंटली उसके लिए साइंटिस्ट को नोबेल प्राइज मिला गया है, आपने सुना होगा, Okay. तो हमारे कल्चर में तो ये सदियों से है। अभी मंगलवार का फास्ट है, अभी बुधवार का फास्ट है। वो बड़ा साइंटिफिक है, बड़ा साइंटिफिक। उसको रिलीजन से इसलिए जोड़ा गया कि वो हम भूल ना जाएं। या लेकिन इट इज अ वेरी साइंटिफिक थिंग। सो फास्टिंग इज ऑल्सो वेरी गुड फॉर योर हेल्थ। जितना ज़्यादा हम अपने पुराने रिचुअल्स को भी याद रखेंगे तो इट्स ओनली गोइंग टू बेनिफिट अस। एब्सोल्युटली। एंड आजकल आपको कोई भी सब्जी, फल बिना पेस्टिसाइड के नहीं मिल रहा है। अब मुझे बताइए, इंसान से ज़्यादा बेवकूफ़ कौन हो सकता है जो अपने खाने पे पहले जहर छिड़कता है कि उसको कोई दूसरा जानवर कीड़ा ना खा जाए, अगर खाए तो मर जाए, और फिर वो उसी खाने को खा लेता है। तो जब कीड़ा मर रहा है तो इंसान बचेगा। सो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम एफर्ट करें, बिकॉज बिना एफर्ट के हमें वो सब्जियां वो नहीं मिल सकता जो बिना जहर के है। अब जैसे मैंने देखा है, मैं सोसाइटी में रहता हूँ और आई स्टे इन ऑन 7th फ्लोर। मैंने देखा है लोग 8वीं मंजिल पे गमलों में सब्जियां उगा रहे हैं। दे आर ग्रोइंग घिया एंड सो मेनी लेडी फिंगर आई सॉ। So they are doing efforts, but if you don't want to do effort, the situation is getting worse.
आपको एफर्ट करना पड़ेगा। जो जहर वाला खाना है वो सस्ता है, और जो बिना जहर का खाना है उसको बोलते हैं ऑर्गेनिक। वो इतना महंगा है कि बहुत सारे लोग उसको अफोर्ड ही नहीं कर सकते। करेक्ट, तो करेक्ट, उगा लो ना। बिल्कुल। या और इसमें हम प्रिजर्वेटिव वाले खाने को तो भूल ही जाएं। आप भूल नहीं सकते, बिकॉज अवेलेबल ही केवल वो है, वो है। आपके पास में ऑप्शन ही नहीं है। हम्म। So, we were telling you about the hospital project which we are हम्म। doing, and इसमें हम लोग बहुत सारी modalities use कर रहे हैं which are based on quantum and हम्म। elemental like hydrogen therapy. So, modalities में जैसे मैंने आपको बताया, जो स्कैनर है हमारा, नॉन लीनियर स्कैनर, और it was made in Russia. We are going to use that. Then there is a machine called Rife machine. There was a doctor and a scientist. His name was Dr. Royal Raymond Rife. He made a machine frequency generator, which was, हम्म। and in fact, he was the first person who made microscope. He, when the microscope was found, before that he had already made a machine which was doing this function, which was very very powerful. He could observe the minutest of the germs and the bacteria in that microscope. So what he did, he created this frequency machine which used to send the vibration, the mortal vibration of the organism, and the organism used to blast. जैसे जैसे ओपेरा सिंगर जब गाना गाता है तो हम्म। ग्लास टूट जाता है हाई राइट। पिच पे, तो हम्म। वो ग्लास का मोर्टेलिटी फ्रीक्वेंसी था, मॉर्टल फ्रीक्वेंसी से बोलते हैं। ओके। तो वो डॉक्टर रॉयल रेमंड राइफ ने वो बनाया, और उसने अपने करियर में 16 कैंसर पेशेंट्स को ट्रीट किया, और 16 के 16 को क्योर किया उस मशीन से। एंड द सेम machine we are going to use there, and we'll try to help the patients with this technology as well. फिर हमारे पास में लाइट से, फ्रीक्वेंसी से, इलेक्ट्रॉन से, और उसके ऊपर जो चीज़ हमारे बॉडी के अंदर सबसे ज़्यादा है, हाइड्रोजन. So there is a concept of supplementing molecular hydrogen in the body, and I could find more than 290 studies which have already been done on supplementing molecular hydrogen and curing diseases. So we are going to use that concept as well. This hospital is going to be a kind of a model which the whole world is going to observe, that how we can achieve good health through nature and what nature has given us. Wow, that's just amazing, and I really feel honored that you chose this platform to share this great, excellent news with my audience and with the whole world. और मुझे लगता है बहुत ही आज एक डिफरेंट, यूनिक, एक अलग ही कॉन्वर्जेशन हुई है, which is going to be like very healing to the listener. Uh, so, in conclusion to our conversation, would you like to say any last words? Okay, so first of all, the the audience should understand that your body is designed to cure itself. Any disease at any stage, it has all the materials, all the equipments it needs inbuilt, what creator has given, so it can cure everything at any stage. You don't have to look out for anything, you just have to focus inside, and it's there. Yeah. And you need to understand the disease, it's just a malfunction of a cell. और उसको क्योर करने के लिए your body need to make new healthy cell to replace the sickness causing sick cell. Once this is done, only then cure can be achieved. Wonderful. So, thank you so much, Dr. Vivek, for coming on my show, Cardio Talks with Barkha. And I'm sure
not just my audience, but all the doctors also around the world would get inspired and encouraged from you to do more research in this field. So, thank you so much once again. Thank you. Thank you for inviting me. Thank you everyone for watching. And if you would like to hear more such podcasts, then subscribe to my channel, Scripting Life with Barkha, and you can follow my podcast series, Career Talks with Barkha. You can also like and comment if you have any questions regarding the topics that we discussed today about alternate medicine, quantum medicine, or anything else also. Thank you so much. See you again in my next podcast.